Honorable Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Thawarchand Gehlot ji, Honorable Minister of State, Shri Ratanlal Kataria ji, Honorable Minister of State, Shri Krishan Pal ji, Honorable Minister of State, Shri Ramdas Athavale ji, the Principal Secretaries from 31 states and Union Territories, the 272 district magistrates, and nearly 500 NGOs who are involved in the efforts for curbing the menace of the drugs. My greetings on this momentous occasion of launching of the Nasha Mukt Bharat in the 272 districts with effect from 15th August 2020. This campaign is being launched by senior ministers in most of the states tomorrow. Friends, starting from tomorrow till 31st March 2021, that is for about 7 months, the Nasha Mukt Bharat campaign is proposed to go to every nook and corner of these 272 districts. The purpose is to connect with the youth and with a coordinated action by the Narcotics Bureau, the district and police administration, the educational institutions, the NGOs, the medical institutions, we propose to bring a major change in these 272 districts in terms of the drug usage. This is a campaign which works through coordinated action of many crucial players. The state governments are very important leaders of this program, and many of them are taking very active interest, and I sincerely compliment them. Friends, this ministry has brought up a lot of campaign material. The training modules, posters, a logo for this, social media sites for this campaign, and also a plan which will cover this campaign for the next 7 months. The ultimate aim is to free this country of the menace of narcotics and other harmful substances, and to empower the youth with good health. While we commit all our strength, collective strength, for this campaign, we are also strengthening institutions which help in this direction. Today, the National Institute of Social Defense, which would play a major role, coordinating role in taking this campaign forward, will get a new campus, and that is being inaugurated by honorable ministers in this very gathering. The new campus and the facilities will help NISD in further supporting this campaign and all your efforts and all our efforts. I thank our Joint Secretary Radhika Chakravarti and her entire team for conceptualizing this campaign within a very short period and also in trying circumstances. Now I request the commitment of all of us to work together in taking this campaign forward. I request Shri Ratanlal Kataria ji, our Honorable Minister, to address the gathering. मान्यवर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, आदरणीय मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MSJE, सम्मान के योग्य रामदास आठवाले जी, माननीय मंत्री MSJE, आदरणीय श्री सुब्रमण्यम जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
आदरणीय राधिका चक्रवर्ती जी, जॉइंट सेक्रेटरी सोशल डिफेंस, जस्टिस, अन्य अधिकारीगण, भारतवर्ष के कोने कोने से शामिल हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और उपायुक्त महोदय, आज सामाजिक न्याय और अधिकार का मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए नोडल मंत्रालय है। यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के सभी पहलुओं का समन्वय और निगरानी करता है, जिसमें समस्या की सीमा, निवारक कार्रवाई, उपचार और नशेड़ियों के पुनर्वास, सूचना का प्रसार और जन जागरूकता शामिल है। वर्तमान में नशे के लिए 495 एकीकृत पुनर्वास केंद्र ड्रग उपभोक्ताकर्ताओं को परामर्श और उपचार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये संगठन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है, जिसमें निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, उपचार और पुनर्वास के घटक शामिल हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा उठाए गए उपायों को तेज करने के लिए मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जागरूकता सर्जन कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्यों के साथ पहचान योग्य संवेदनशील जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। समुदाय में पहुंचना और आश्रित जनसंख्या की पहचान अभियान में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह की पहचान के बाद उन्हें अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं के लिए भेजा जाएगा। जिला प्रशासन और राज्य सरकारों के समर्थन से मादक द्रव्यों के सेवन से लड़ने में इस अभियान को सफल बनाने में मदद मिलेगी। मैं जिला कलेक्टरों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो 15 अगस्त 2020 को अपने जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. Now I would request Shri Ramdas Athawale ji, Honorable Minister of State for Ministry of Social Justice and Empowerment, to deliver his message. तो हेलो। तो आज हम नशा मुक्त भारत की हमें बढ़ानी है भारत की शान, इसलिए शुरू हो रहा है नशा मुक्त भारत अभियान। तो नशा मुक्त भारत अभियान के इस फंक्शन में हमारे ऑनरेबल आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र गेहलोत जी, हमारे राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर जी, दूसरे राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया जी, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम जी, हमारे एनआईडी के डायरेक्टर सुरेश मिश्रा जी, हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी सोशल डिफेंस जी श्रीमती राधिका चक्रवर्ती जी, और आप सभी मान्यवर आज इस महत्वपूर्ण फंक्शन में उपस्थित है। तो ये तो नशा मुक्ति भारत अभियान जो है, ये अभियान भारत के
172 डिस्ट्रिक्ट में शुरू होने जा रहा है। ये जो मतलब नशा होती है, नशा ये जिंदगी की आशा को खत्म करती है। ये नशा मुक्त भारत बनेगा तो भारत और भी शक्तिशाली देश बन सकता है। और इसीलिए नशा जो होती है, नशा से मुक्त करने के लिए बहुत सारे एनजीओ, जो 500 एनजीओ अपने भारत देश में है, और ये एनजीओ भी मतलब बहुत सारे लोगों को नशा मुक्त कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नशा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत में पदार्थ उपयोग के विस्तार और प्रतिमान पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 14.6% लोग, यानी लगभग 16 करोड़ लोग, जो 10 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक जिनकी आयु है, ये शराब के वर्तमान उपयोग करता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में प्रचलन 17 गुना अधिक है। लगभग 2.8% भारतीय, यानी 3.1 करोड़ व्यक्तियों ने भांग का उपयोग करने की सूचना दी है। ओपियोइड के वर्तमान उपयोग की व्यापकता कुल मिलाकर 2.6% है। 10 से 75 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 1.18 करोड़ लोग एडिक्टिव के वर्तमान उपयोग करता है। इन हेलैंड का प्रचलन बच्चों और किशोरों में सबसे अधिक। राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 8.5 लाख लोग जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के मद्देनजर इस मुद्दे को हल करने की तत्काल आवश्यकता है। और इसलिए नशा मुक्त भारत अभियान, कल का जो दिवस है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आजादी का दिवस है। और कल 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, और अभी 73 साल पूरे करके हम 74 साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे दिन में हम नशा मुक्त भारत अभियान को पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान को जिलाधिकारी के माध्यम से हर जिले में नशा करने वाले लोगों को नशा मुक्त करने के लिए अपने मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे एनजीओ को ध्यान देते हैं, और उनके माध्यम से बहुत सारे लोग नशा मुक्त हो भी रहे हैं। इसके लिए और भी इस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम अपन मतलब ये अभियान जो है कल से शुरू हो रहा है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं नशा मुक्त भारत अभियान सफल होगा, और इस नशा मुक्त भारत अभियान का जो प्रचार यानी प्रसार है, ये अपने मंत्रालय के माध्यम से राज्य के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से हम हर राज्य में इसको बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज नशा मुक्त भारत अभियान जो शुरू हो रहा है, इसको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और ये अभियान सफल होगा मैं उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now I would request Sri Krishanpal Gurjar ji, Honorable Minister of State, to give his message. आदर और सम्मान के योग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, मेरे साथी राज्य मंत्री आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मेरे साथी राज्य मंत्री आदरणीय रामदास अठावले जी, हमारे विभाग के सचिव आर सुब्रमण्यम जी, संयुक्त सचिव राधिका चक्रवर्ती जी, डायरेक्टर साहब, सभी अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों के सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबान, देश के सभी जिलों के
उपायुक्त महोदय साहिबान, कल पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। आज उसकी पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और कल से ही पूरे भारत में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत होगी। आप सब जानते हैं ड्रग की लत देश में एक गंभीर समस्या बनकर उभर रही है, जिसमें न केवल ड्रग्स का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए खतरनाक परिणाम है, बल्कि बड़े पैमाने पर परिवार और समाज के लिए भी खतरनाक परिणाम है। ड्रग्स का दुरुपयोग किसी भी आयु वर्ग या लिंग के व्यक्ति को पीड़ित कर सकता है। युवा, विशेष रूप से किशोरों और नवयुवाओं को विशेष रूप से मादक द्रव्यों के सेवन का शिकार होना पड़ता है। सरकार और सिविल सोसाइटी दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वे संभावित पीड़ितों को मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों से अवगत कराएं और मादक द्रव्यों के सेवन के प्रलोभन के लिए आवश्यक उपाय करें। नशीली दवाओं की लत की घटनाओं को रोका जा सकता है अगर इसकी शुरुआत से पहले इसे रोका जाता है। इसलिए युवाओं के मनोविज्ञान को समझने, उनके कौशल को विकसित करने के लिए माता पिता और शिक्षकों को जागरूक करना बेहद महत्वपूर्ण है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर नींव रखने की जरूरत है, जहां बहुत कम उम्र के बच्चे भी इस नशाखोरी से सवै परिवार और समाज को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए। उन्हें निवारक कार्रवाई और समुदाय आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। नशा मुक्त भारत अभियान के एक भाग के रूप में सामाजिक, प्रिंट, डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संवेदीकरण शिक्षा कार्यक्रम, नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक पूरे अभियान काल में किए जाएंगे। मैं सभी जिलाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जो 15 अगस्त 2020 को अपने जिले में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। I now request Srimati Radhika Chakravarti to make a brief presentation about the contours of the Nasha Mukt Bharat campaign. Thank you, sir. With the permission of the chair, I would like to invite the attention of all the participants to the title slide of the presentation, Nasha Mukt Bharat campaign, where you see two hands joining. These two hands show strength, confidence, and the power of unity. It could be drops making an ocean, it could be stars making a galaxy, and it could be the union and the states coming together for a cause. Ladies and gentlemen, I welcome you all to this presentation on Nasha Mukt Bharat campaign. As you all know, we have identified 272 districts in 32 states, and these districts have been identified based on the inputs of Narcotics Control Bureau and also based on the survey findings of the ministry. But if you look at the map, if you look at the red dots, what is more striking here is that the landlocked areas of the country are lesser vulnerable relatively. And if you look at states sharing borders, international borders, and the states adjacent to these states are more vulnerable to drug abuse. So that is why we have launched this campaign in the 222 districts, which are shown in red here. Now, what are the objectives of the campaign? There are 6 main objectives. The first one is to create awareness in the community so that nobody can go near the drugs or substances. The second is focus on the higher educational institutions, university campuses, and schools to make them substance free
So the focus is on the youth and the adolescents. The third objective is to reach out into the community and identify the population who are already dependent on substance or who are prone to substance abuse or use. The fourth objective is to augment the already existing the counseling, addiction treatment and rehabilitation facilities which are available in the country at the moment. And the fifth objective is to build the capacities of the service providers who are working in the field of drugs. And sixth objective is to focus on the mental and physical well-being of youth and adolescents. Now, if we look at the implementation protocol, at the apex is the Ministry of Social Justice and Empowerment, which is assisted by NISD and state PM coordinators who will be monitoring this campaign, followed by the state level Nashamukht campaign committees who will be chaired by the state secretaries, followed by the district level Nashamukht campaign committees chaired by DMs, and below that are committees at the municipalities at subdivisional level. This is the suggestive roadmap of the campaign. As I said, it is only suggestive. So where we identified that the coming 7 months, we can each month a particular topic can be focused upon. Like in August, we can focus on the youth and substance abuse. In September, it could be lifestyle issues and substance abuse. And in October, it could be mental health related issues which pull people into substance abuse. And November, it could be children and substance abuse. And in December, it should be the education and life skills, primary focus on the educational institutions. And in January, it could be the health related issues which can cause people taking substances. And in February, the government initiatives and what are the government help aided institutions which are in the country and how can they be improved upon. And in March, it could be the women and substance abuse. These could be the focal points which we can actually as part of the campaign focus. Now coming to the methodology, the first would be formation of a district action plan, Nasha Bharat plan for the district, wherein 50 master volunteers would be identified per district, and these master volunteers would be trained at the district level. It could be a both online and an offline kind of a training methodology, and all the necessary training material and the IEC material has already been shared with you all. Now, after getting trained, these master volunteers would fan out in districts and conduct campaign activities. Now, what should be milestones of the campaign? The first one would be identification of hotspots and users in the community in that particular district. The second would be guiding the users and the vulnerable people to their nearest counseling and treatment centers. The third milestone is gaining inputs on the supply side in the district and conveying the same to the Narcotics Control Bureau and committees for taking action on those inputs. The fourth would be complete focus on awareness generation and mobilization of at-risk people by the outreach and drop-in centers and the peer-led intervention programs. And the fifth and the final would be the augmentation of the counseling, addiction treatment and rehabilitation facilities in the country. So if we see for your convenience, for the convenience of the district, we have mapped these organizations, and very shortly we will be sharing the link with you, wherein you can actually identify which is the nearest rehabilitation center, nearest counseling center, and the nearest treatment center, that is a treatment center in the, which is closest to you, so that you know the identified people can be taken to these centers. So this is basically on the Google Earth. When the link is shared with you all, you can actually see what is present in your district, including the name and details of the district, and also with the picture and all. Like for example, this is a particular organization in Bihar. So we are going to demarcate this into state-wise so that you will be able to identify the organization.
Now, having run this campaign, which is going to be there for 7 months, which will end on 31st of March 2021, there would be a national level evaluation of this campaign, which would comprise of 3 components. One would be the evaluation of the output and outcome parameters, which are under preparation and will be shared with you all shortly. And after this evaluation, there will be a review of impact assessment that would be conducted after the close of the campaign. And based on the evaluation and review, we would be identifying the top 3 states and the top 3 districts and the DM, and they would be called to the capital for felicitation and for a national award. So this is how we propose to run the this Nasha Mukt Bharat campaign, and I request you all to participate very actively. And I thank you very much here for being here. And these are the links we have shown, and this QR code can be scanned for you all to access all of the sites. Thank you very much. थैंक यू। आई नो रिक्वेस्ट सर, इसमें काफ़ी कुछ पोस्टर्स और मटेरियल तैयार किए हैं और उसको स्टेट्स को भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी 4 पोस्टर्स जो है मेरा निवेदन है कि 4 मंत्रियों वो पोस्टर्स को विमोचन करें। थैंक यू। जस्ट गेट So I would now request Sri Thawar Chand Gehlot ji, Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, to deliver his keynote address. नशा मुक्त भारत अभियान के इस अवसर पर 32 राज्यों के प्रमुख सचिव, 272 जिलों के कलेक्टरगण, अन्य अधिकारीगण, मेरे विभाग के मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी गुर्जर साहब, रामदास जी आठवले साहब, रतनलाल जी कटारिया साहब, विभाग के सचिव सुब्रमण्यम साहब, संयुक्त सचिव राधिका चक्रवर्ती जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, मैं सभी राज्य सरकारों और उन जिलों के जिला कलेक्टरों को बधाई देता हूं जो कल नशा मुक्त भारत अभियान शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उस बात की खुशी है कि आप सभी ने कल से प्रारंभ होने वाले इस अभियान की तैयारी भलीभांति कर ली है और ये अभियान 31 मार्च 2021 तक यानी 7 माह तक चलेगा। इन जिलों का चयन ओपियाड ड्रग्स की आपूर्ति एवं उपलब्धता के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर की गई है। यह अभियान एक प्रमुख राष्ट्र निर्माण कार्य है क्योंकि यह स्वस्थ एवं अनुशासित युवा पर ध्यान केंद्रित करता है। नशीले पदार्थों पर निर्भरता न रहकर केवल एक पुरानी समस्या है, बल्कि इनका उपयोग करने व्यक्तियों, उनके परिवारों और पूरे समाज पर खतरनाक असर पड़ता है तथा यह समस्या पूरे भारत में और विश्व में गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। यह अभियान नियामक एजेंसियों को एक साथ लाने का काम करेगा, जैसे स्वापक ब्यूरो, राज्य एवं जिला प्रशासन, पुलिस, एनजीओ, सामुदायिक संस्थान और अस्पताल, ताकि वे नशा मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने हेतु घनिष्ठ तालमेल के साथ काम कर सके। इस अभियान को चलाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की अगुवाई में 272 जिलों में जिला प्रशासनों को सौंपी गई है। जिला एवं राज्य स्तरीय
गठित नशा मुक्त भारत समितियां इस अभियान के लिए रणनीति तथा कार्य योजना तैयार करेगी। ये समितियां यह सुनिश्चित करेगी कि अभियान संबंधी गतिविधियों का कारगर ढंग से कार्यान्वयन किया जाए और इस अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। जिला स्तरीय समिति जो कोर समिति है अपने जिले में इस अभियान की गतिविधियों एवं टाइमलाइनों का निर्धारण करेगी। जनता में जागरूकता सृजन और इस क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना इस अभियान का महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रालय प्रत्येक कलेक्टर को अपने जिले में नशा मुक्त अभियान समिति चलाने के लिए 10 लाख रुपए का सहायता अनुदान प्रदान करेगी। जिलों द्वारा विस्तृत लेखे के प्रस्तुतिकरण पर इस अभियान हेतु अलग से सृजित खातों में धनराशि जारी की जाएगी। मेरे मंत्रालय के अधिकारीगण आपकी गतिविधियों को कार्यान्वित करने और आपकी सहायता करने के लिए हर समय आपके साथ खड़े होंगे। इसी तरह मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष वित्तीय रूप में समर्पित सभी एनजीओ और स्वैच्छिक संगठन योजनाओं को तैयार करने तथा उनका निष्पादन करने में आपकी मदद करेगी। मंत्रालय की ओर से हम निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, उपचार एवं पुनर्वास संबंधी उपायों का समर्थन करेंगे। इन प्रत्येक जिलों में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी। एक ऐसे संगठन की जो विशेष रूप से समुदाय में संवेदनशील किशोरों और युवाओं के लिए प्रारंभिक निवारक शिक्षा के लिए स्वयंसेवी युवाओं को समुदाय के साथ काम करता है। नशीली दवाओं पर आश्रितों के लिए परामर्श और लिंकेज, उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं के साथ स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और काउंसलिंग के लिए एक केंद्र, आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर होगा। नशीली दवाओं पर आश्रित व्यक्तियों के लिए इन पेशेंट सुविधा वाले एक नशा मुक्ति केंद्र यदि एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है तो व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र IRCA, और यदि सरकारी अस्पतालों द्वारा चलाया जा रहा है तो ATF कहलाता है, संचालित किया जाएगा। इन सुविधाओं केंद्रों को जियो टैग दिया गया है ताकि जनता को उनके निकटतम IRCA, ODIC, CPLI की तलाश करने और उनकी सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। नशीली दवाओं ड्रग्स के समस्या से निपटने के लिए 2017 में किए गए 43 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को बढ़ाकर 2020 में 260 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 5 गुना वृद्धि इस विषय को सरकार द्वारा दी गई जा रही अहमियत को दर्शाती है। मुझे आपको यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि मंत्रालय के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई स्थापित की गई है। इस PMU में 20 युवा और योग्य पेशेवर शामिल है जो इन्हें आवंटित राज्यों के राज्य समन्वयकों के रूप में कार्य करेंगे। PMU का ब्यौरा साझा किया गया है और वे नशा मुक्त भारत अभियान के साथ साथ अन्य स्कीमों को आगे ले जाने में आप सबके साथ सक्रिय संपर्क में हैं। इनमें से अधिकतर राज्यों में वास्तविक रूप से मौजूद है और इस अभियान के औपचारिक शुभारंभ में आप सबकी मदद करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी राज्य सचिवों, जिला कलेक्टरों और उनके दलों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत कम समय में मंत्रालय को अपना उत्तर दिया और कोविड के ऐसे मुश्किल भरे वक्त में अभियान के लिए अपना कीमती समय दिया और प्रयास किया है। मैं
NAPDDR स्कीम को सफलतापूर्वक चलाने में इस मंत्रालय की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और नशा मुक्त भारत अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपने अपने राज्यों के लिए प्रशासनों का मार्गदर्शन करने और उनकी सहायता करने का अनुरोध भी करता हूं। मैं नशीली दवा की मांग में कमी लाने के क्षेत्र में कार्यरत सभी फंडधारकों जैसे NGO, स्वैच्छिक संगठन, वीओ, राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसियों से अपने अनुभव और विशेषज्ञता के साथ जिला समितियों की सहायता करने का अनुरोध करता हूं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि नशीले पदार्थों के उपयोग और दुरुपयोग से लक्षित लोगों को बचाने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने और इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मैं उन्हें जिला स्तरीय समितियों में सक्रिय भागीदारी करने और इस अभियान को चलाने में जिला प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह आश्वस्त करता हूं कि जिलों और राज्यों के प्रयासों को उच्चतम स्तर पर उपयुक्त मान्यता दी जाएगी। राज्यों और जिलों में अभियान के आउटपुट, परिणाम और प्रभाव का पता लगाने के पैरामीटर तैयार किए जाएंगे और आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभियान के अंत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों और 3 जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। यदि मानव संसाधन एक संपदा है तो इस मानव संसाधन की क्षमता, संवर्धन व गुण है जो इसे सबसे अधिक मूल्यवान बनाता है। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान मंत्रालय के समाज रक्षा प्रभाग की एक ऐसी अग्रणी संस्था है जो देश भर में सेवा प्रदाताओं, पेशेवरों और हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे खुशी है और मैं NISD के दल को अपने नए अत्याधुनिक भवन में एक नई शुरुआत करने पर बधाई देता हूं और उनकी सफलता की कामना करता हूं, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान चलाने में NISD की सेवाएं बहुत ही उपयोगी होगी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वे समाज में सभी वर्गों के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करें और सक्रिय कदम उठाएं। आज हम सबको यह शपथ लेनी है कि हम जिन जिलों में नशीले पदार्थों के उपयोग को खत्म करेंगे और नशा मुक्त भारत की ओर अग्रसर होंगे। जय भारत। धन्यवाद सर। धन्यवाद। Now I would request Dr. Virendra Mishra, Director, National Institute of Social Defense, to introduce the organization. हमारे केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, हमारे मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे मंत्री श्री ठाकुर जी, यही करना, हमारे मंत्री श्री सत्यपाल कटारिया जी, हमारे सचिव डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस श्री सुब्रमण्यम जी, आदरणीय जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती राधिका चक्रवर्ती जी एवं मंत्रालय के उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं वर्चुअल मीडिया के माध्यम से जुड़े सभी अतिथिगण। संक्षिप्त में NISD के बारे में एवं NISD के नए भवन के बारे में बताना चाहूंगा। 15 जुलाई 2002 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस यानी NISD एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य कर रहा है। NISD समाज रक्षा के क्षेत्र में एक नोडल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। वर्तमान में NISD का कार्य नशीली पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं ट्रांसजेंडर्स के कल्याण, भिक्षा निवारण तथा अन्य समाज रक्षा मुद्दों पर केंद्रित है। मंत्रालय के सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग के लिए 20 सदस्यीय युवा PMU टीम का गठन किया गया है, जो कि अपना कार्य NISD में कर रहे हैं। NISD अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर ऑनलाइन कोर्स के प्रावधान पर भी कार्य कर रहा है। NISD का नया भवन द्वारका सेक्टर 10 में 2 एकड़ के परिसर पर बनाया गया है। इस 6 मंजिला भवन में कुल 36 कार्यालय कक्ष हैं एवं 5 स्मार्ट क्लास रूम और 6 सम्मेलन कक्ष हैं।
आधुनिक उपकरणों की सुविधा के साथ एक सभागार भी है जिसमें 100 लोगों की बैठने की क्षमता है। इस भवन में आधुनिक पुस्तकालय, कैंटीन एवं बेसमेंट पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही परिसर में 16 अतिथि कक्ष भी है। NISD के भवन के भूतल का करीब 20,450 स्क्वायर फीट का निर्माण क्षेत्र है तथा बाकी प्रत्येक 5 मंजिल के करीब 14,000 स्क्वायर फीट का निर्माण क्षेत्र है। पूरा परिसर वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुसार बनाए गए हैं। आज अत्यंत खुशी की बात है कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी द्वारा मंत्रालय के सभी मंत्रीगणों, सचिव व अन्य मंत्रालय के अधिकारियों की गरिमा में उपस्थिति में NISD के नए भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें राज्यों के एवं विभिन्न जिलों के अधिकारियों की भी भागीदारी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह नए भवन का उद्घाटन करने की कृपा करें। Now we would see a short film on the National Institute of Social Defense building. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान 15 जुलाई 2002 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। NISD सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। ड्रग्स के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों के लिए मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। NISD भवन का नया परिसर द्वारका सेक्टर 10 में किया गया है। ये 2 एकड़ के परिसर में 6 मंजिला इमारत है। इस भवन में एक बड़ा सभागार है जिसमें प्रोजेक्टर की सुविधा के साथ 100 लोगों के बैठने की क्षमता है। संस्थान में ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं की सुविधा के लिए नवीनतम उपकरणों के साथ 5 स्मार्ट क्लासरूम हैं। बैठकें आयोजित करने के लिए प्रत्येक मंजिल पर एक सम्मेलन कक्ष है और 5वीं मंजिल पर एक बड़ा सम्मेलन कक्ष है जिसमें 60 से अधिक लोग बैठकर चर्चा कर सकते हैं। NISD भवन में एक व्यापक पुस्तकालय भी है जिसमें करीब 10,000 पुस्तकों का संग्रह है। NISD के परिसर में 16 कार्यात्मक अतिथि कक्ष हैं। परिसर के बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा प्रदान की गई है और स्टाफ के खानपान हेतु एक कैंटीन का प्रावधान भी है। NISD का विशाल परिसर पर्यावरण के अनुकूल है जिसमें भूतल एवं छत पर सौर पैनल स्थापित है। आसपास का क्षेत्र हरे भरे पेड़ पौधों से सुसज्जित है जो इसे और सुंदर बना देता है। संस्थान में कर्मचारियों और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के कार्य करने की व्यवस्था है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट मंत्रालय की योजनाओं की मॉनिटरिंग का कार्य देखता है। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री थावरचंद गहलोत द्वारा किया गया। Now we have come to the concluding part of this event with lot of expectations and hope. I express my gratitude to all who joined today in this webcast and for being a part of the beginning of this journey. I am particularly grateful to Sri Thawarchand Gehlot ji, Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, who gave his unstinting support and encouragement to all the officers of the ministry, not just for this campaign,
but for also various initiatives this ministry takes for the welfare and empowerment of the vulnerable sections of the society. I thank you, sir, for your inspiring presence and message on this occasion. It is indeed a pleasure working with you. I thank the Honorable Ministers of State, Shri Krishanpal Gurjar ji, Shri Ramdas Athawale ji, and Shri Ratanlal Kataria ji for being present here and giving their valuable messages on the usage of drugs in youth and measures to be taken, for the national survey findings and efforts of the government and objectives to intensify through the Nasha Mukt Bharat campaign. I would like to thank Shri R. Subramaniam ji, Secretary Social Justice and Empowerment, who has been the force behind this campaign through his initiatives, ideas and guidance in running this campaign. This campaign is taking a definite shape because of the Secretary Social Justice and Empowerment. My heartfelt best wishes and immense hope is with the state secretaries of all the 32 states and all the 272 district magistrates and their teams who have responded positively to the call of the ministry and striving hard in the field to achieve the desired results of this campaign. You are bringing strength, muscle, and immense action to this campaign. I can only say that the success of this campaign rests on your able shoulders. I thank you all and convey our best wishes for the launch of Nasha Mukt Bharat campaign in your districts tomorrow. I thank the NGOs and voluntary organizations who are running rehabilitation centers, SLCAs, and targeted intervention programs for being part of this campaign and sharing your valuable field experience and expertise. The team of doctors and psychiatrists from AIIMS New Delhi who are committedly working on the counseling rehabilitation matters have joined us today. I thank you all for the support. Justice and empowerment should not only be done, but should be perceived to be done. The initiatives of the ministry and benefits of these initiatives are informed to public through the electronic, print and social media. I would take this opportunity to thank all the representatives of the media for their involvement. My team, officers and staff of Drug Prevention Division, NIC, National Institute of Social Defense, and the Project Monitoring Unit state coordinators would relentlessly back the efforts of the districts during this campaign. My heartfelt thanks to them for their hard work and commitment. This vote of thanks would not be complete without thanking my senior colleagues of the ministry who always stayed by me, encouraged me and indulged me. All these people make this a better place to work, and thank you all very much. Namaskar, Jai Hind.